Hello everyone, welcome to the channel Mission Margdarshan. In today's video, we will be talking about the sources of our constitution. Let's start the video. Alright, let's start the video as sources of our constitution. Now the first thing we're going to talk about is the introduction, right? In the introduction, we can say that our constitution is borrowed from various sources. You know that our constitution is the lengthiest written constitution. Why it is the lengthiest constitution? Because our constitution is borrowed from various sources. Now, the father of our constitution, that is Dr. B.R. Ambedkar, said about our constitution as it was framed after ransacking all the known constitutions of the world. Point to be noted here is that this line, ransacking all the known constitutions of the world. What do you mean by that? It means that he read all the constitutions of the world and extracted all the good points from it. Not all the points were extracted. Some points which were suitable for the Indian citizens, only those points were extracted from the constitutions of those countries. Right? Let's jump on to the next point. The most profound influence and material source. Now, we have seen that our constitution has been borrowed from various sources. सबसे बड़ा जो इसका मटेरियल सोर्स है, सबसे ज़्यादा ये कहाँ से बोरो किया है, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, right? In this government of India act, more than half of the provisions of the constitution are identical. हिस्ट्री में हम बात करेंगे इस एक्ट के बारे में. हिस्ट्री में अगर आप में से काफ़ी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें ये एक्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आता है. इसको हम ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. वाई? बिकॉज जब ये एक्ट बना था और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी और जब हमारा संविधान बन रहा था तो काफ़ी कुछ इस एक्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया था. ठीक है, अगले पॉइंट पे हम जंप करते हैं. अदर सोर्सेस. अदर सोर्सेज की मैं बात करूं, अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, अदर सोर्सेज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कहां कहां से लिए हैं हमने बाकी सोर्सेज? फ्रॉम ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, इसको हम रशिया कहते हैं आज के दौर पे, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड जापान. सो ये मेजर कंट्रीज हैं जहां जहां से हमने मेजर सोर्सेस पिकअप किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. राइट, let's take on to the first source, that is Government of India Act 1935. As I have already told you that it is called as the blueprint of our constitution. This is a very important point. There were some confusions regarding the students, and that confusion was between this Government of India Act 1935 and the 42nd Amendment Act 1976. Please remember that 42nd Amendment Act 1976 is called as the mini constitution. I have already told you in the previous video why it is called as the mini constitution, because it was through this amendment that the major words were added in the preamble and the fundamental duties were also added. Government of India Act as a blueprint of our constitution. What we borrowed from the Government of India Act is, first is the federal scheme. What is federation? Federal scheme or federation एक ही चीज़ है. I'll tell you in the simple words. वो कंट्री जहाँ पे दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, दैट इज द स्टेट एंड द यूनियन, इनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. स्टेट को अलग पावर दी जाती है, यूनियन को अलग पावर दी जाती है. अगर मैं बात करूँ फेडरल स्कीम की, सो कुछ कंट्रीज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो फॉलो करती हैं वो एकदम यूनिफाइड फॉलो करती हैं. यूनिफाइड बोले तो कहीं पे सेंटर स्ट्रांग होता है, कहीं पे स्टेट स्ट्रांग होता है. अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो यूएसए में क्या है, स्टेट स्ट्रांग है. अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया में क्या है, सेंटर स्ट्रांग है. कनाडा की अगर मैं बात करूं, कनाडा की क्या है, वहां पे हमारे टाइप की फेडरेशन है, यानी कि हमारे टाइप की मतलब हमने वहां से फेडरेशन ली है. दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज डिफरेंट. एंड जो कनाडा से हमने फेडरेशन लिया है दैट इज डिफरेंट, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके. अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि फेडरल स्कीम हमने कहाँ से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. राइट, नेक्स्ट इज ऑफिस ऑफ द गवर्नर. Every state has the governor, even there can be a one governor of more than two states, right? So ये हमने कहाँ से लिया है, Government of India Act 1935 से. Next we talk about judiciary. Judiciary हम देखते हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, we have high courts,
दिस इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड जुडिशरी. सो ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. Again, very important point is our judiciary is independent, but we haven't taken the independence of judiciary from the Government of India Act 1935. Next is Public Service Commission. Public Service Commission like UPSC हो गया हमारा, State PCS हो गया. So ये भी हमने Government of India Act 1935 से लिए हैं, right? And the last is emergency provisions. Emergency provisions हमारे पास तीन आते हैं under Article 352, 356 and 365 and under Article 360. ये हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे जाकर आपको कि ये क्या होते हैं. एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, राइट, ये हमने कहाँ से लिया था? ये इसके जो बनाने वाले थे, इसके जो क्रिएटर्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो क्रिएटर्स थे, दे वर नन अदर दैन द ब्रिटिशर्स. सो जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिस टाइप का वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऑब्वियसली वो सेम चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में रिफ्लेक्ट करेगी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. सो जितने भी हमने फीचर्स ब्रिटेन से लिए हैं, कहीं ना कहीं वो फीचर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिए हैं, राइट. सो ये एक तरीका है ऐसे याद करने का. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटेन से हमने क्या लिया? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. I told you there are two types of government. One is presidential form and one is parliamentary form. US का मैंने एग्जांपल दिया था, that is of presidential form and UK is of parliamentary form. अगर मैं बात करूँ इंडिया के, तो इंडिया has also parliamentary form of government. यहाँ पे जो real powers होती है वो किसके पास होती है? कैबिनेट के पास, who is headed by the prime minister. Whereas अगर मैं presidential form of government की बात करूँ तो वहाँ पे real powers किसके हाथ में होती है? The president. Alright. Next, let's jump on to the rule of law. रूल ऑफ लॉ क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ जितने भी इंस्टीट्यूशंस, जितने भी पब्लिक अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स होते हैं, वो सारे दे आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स द लॉ, राइट. नोबडी इज अबव द लॉ. अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये फीचर हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया, राइट. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे हमने ब्रिटेन से लिए हैं. इसकी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम पार्लियामेंट करेंगे. What are the legislative procedures, what are the parliamentary privileges and all those things, right? Next, single citizenship. इसका इस अपोजिट आता है हमारे पास dual citizenship. Dual citizenship हमारे पास US में है. What does this mean? Dual citizenship का मतलब ये होता है कि अमेरिका में आपने देखा होगा, एक हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट और एक हमारे पास है स्टेट गवर्नमेंट. So a citizen is both a citizen of federal government as well as a state government. ये मतलब हुआ dual government का. अगर मैं इंडिया के शब्दों में कहूँ, अगर इंडिया में dual government होती तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता कि अगर कोई दिल्ली का सिटीजन है या मान लो यूपी का सिटीजन है, तो वो यूपी का सिटीजन भी माना जाएगा एज वेल एज इंडियन यूनियन का भी सिटीजन माना जाएगा. उसको दोनों तरफ से सिटीजनशिप के राइट्स दिए जाएंगे. ही विल एंजॉय बोथ द राइट्स ऑफ यूपी सिटीजनशिप एज वेल एज इंडियन यूनियन सिटीजनशिप. बट हमारे पास क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है. वी डोंट हैव डुअल सिटीजनशिप. सो अ पर्सन इज ओनली registered as the citizen of India, not a citizen of a particular state in India, right? Next is cabinet system. This is very important. cabinet system की अगर मैं बात करूँ तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है. cabinet system वो होते हैं, first of all the cabinet system is headed by the PM. कैबिनेट के अंदर जितने भी मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के बहुत खास होते हैं. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं, ये कैबिनेट में आते हैं. एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ी बॉडी है, उसके अंदर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. एक बात याद रखिएगा, इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है. एवरी कैबिनेट मिनिस्टर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट एवरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर. इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे पार्लियामेंट में. नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज प्रेरोगेटिव राइट्स. प्रेरोगेटिव राइट्स हमारे अंडर आर्टिकल 32 में आते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. वी हैव 5 राइट्स. 5 राइट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 हीबिस कॉर्पस, नंबर 2 मैंडेमस, नंबर 3 को वारंटो, नंबर 4 सर्चुलरी, नंबर 5 प्रोहिबिशन. ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं एज अंडर आर्टिकल 32. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, दिस Article 32 is called as the heart and soul of the Constitution. By whom? By none other than Dr. B.R. Ambedkar. Right? Next feature जो हमने लिया that is parliamentary privileges. I told you कि legislative
प्रिविलेजेस और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से। दे आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट चैप्टर। इसको हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट इज बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है जिस स्टेट में आपके दो हाउसेज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे मान लो यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे दो हाउसेज हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो यूपी क्या हुआ हमारा? बाइकैमरलिज्म। उत्तराखंड एक एग्जांपल है। उत्तराखंड की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो उत्तराखंड हैज व्हाट? ओनली विधानसभा, यहाँ विधान परिषद नहीं है। सो उत्तराखंड इज व्हाट? यूनिकैमरलिज्म, राइट? सो सम स्टेट्स हैव बाइकैमरलिज्म, सम स्टेट्स हैव यूनिकैमरलिज्म। आपके लिए एक होमवर्क है, आप जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा नीचे कि बाइक हमारे देश में बाइकैमरलिज्म वाले स्टेट कौन कौन से हैं, right? That's all for today's video. This was part 1 of the video. In the next part we will be dealing with the other sources of the constitution. I hope you liked the video. If you like the video, then do like, share and subscribe the channel. Do hit that bell icon so that you get the notification on time for the video. Till then, goodbye, take care.